I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the gods I sing your praise. I bow down toward your holy temple and give thanks to your name. For your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. On the way I called, you answered me. My strength of soul you increased. All the kings of the earth shall give you thanks, O Lord, for they have heard the words of your mouth. And they shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. For though the Lord is high, he regards the lowly, but the haughty he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand delivers me. The Lord will fulfill his purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा. सभी देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा. क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया. हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं. और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है. यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है. चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी मुझे जिलाएगा. तू मेरे क्रोध शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा. हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है. तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे. My friends, I welcome you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ in this Sunday worship service. And as we all are here and join the worship service through media, may God bless you all, and I commit you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ into the almighty hands of God. मैं आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह में आज की इस संडे इबादत में करता हूं. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस वर्शिप के दौरान जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रभु की कृपा और अनुग्रह और उसकी दया सब पर बनी रहे. आइए आज की वर्शिप शुरू करने से पहले हम लोग सब अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगे. Let us pray. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time that you have given us this morning, Lord, as we all are joined in the worship service. Lord, be with us, and Lord, thank you for your mercies and for your grace that you gave us the privilege to see the new sunshine. And Lord, in this new sunshine, and Lord, at this day, we glorify your name. And Lord, today's worship, today's sermon, and every activity is made acceptable unto you, O Lord. And Lord, I commit every members of this church into your mighty hand. Bless them and use them mightily. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है हिंदी की गीत की पुस्तक, उसका गीत नंबर 111, पास आओ विश्वासियों आनंद करते आओ. And for today's song, we will glorify God by singing this song, which is found in Hindi Methodist book, hymn number 111, पास आओ विश्वासियों आनंद करते आओ. Let us sing and let us glorify God during this song.
मनुष्यों से मिला। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग के राजा को। आज प्रार्थना हमारी सुन ले प्रिय यीशु, हे बालक के प्रीतम हम पर हो दयाल। हम ही में जन्म ले आज हे प्यारे यीशु, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग के राजा को। आइए अजीज़ों, हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। हम लोग अपोस्टल्स क्रीड, जो प्रेरितों का विश्वास है, उसको हम सब एक साथ दोहराएंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश गीत की पुस्तक उसका 738 नंबर, और हिंदी में पाया जाता है पेज नंबर 1। We will affirm our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English hymn book number 738 and in Hindi Methodist hymn book page number 1. Let us unite in this historic confession of Christian faith. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day he rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. अजीज़ों, अब ये वक्त होगा रेस्पॉन्सिव रीडिंग का, जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 115वां भजन 1 से लेकर 18 वचन तक। For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms number 115, verses beginning from 1 to 18, and it will be led by Mr. Shokin Masih. It will be led by Mr. Shokin Masih, और ये मिस्टर शौकीन मसीह के द्वारा लीड होगा। इसके बाद हम सब होसिता इश्बाब की और ग्लोरिया पैट्रिया के अंदर हम लोग सब शामिल होंगे, फॉलोड बाय होसिता इश्बाब की और ग्लोरिया पैट्रिया। और मैं निवेदन करता हूँ शौकीन मसीह से कि वो आएँ और रेस्पॉन्सिव रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। May I request Mr. Shokin Masih, please come and lead us in responsive reading. बारी बारी से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 118। पहले आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आयत आप पढ़ेंगे और 18वीं आयत को हम सब साथ पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवे कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर है, मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट रहूंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम में निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खी के नाई घेर लिया है, परंतु कांटों की आग की नाई वे बुझ गए। यहोवा के नाम में निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था,
कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ के से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के काम का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में निकाला। आइए हम सब मिलके बहुत 27 बाब की हम सब मिलकर गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारी सारी चीज़ों को, हमारी सारी बातों को, सब प्रॉब्लम्स को, हर एक बातों को हम परमेश्वर के चरणों पर रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर भला है, सुनने वाला परमेश्वर है, दयावंत और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। We will put our everything unto the feet of the Lord. It's time to pray. We will close our eyes. We will seek to God, because He is the gracious God, Almighty in power. He hears our prayer. He searches the true and innocent heart. Let us seek Him. Let us ask from Him. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। महान परमेश्वर है पिता, आप अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर हैं। ऐसे महान परमेश्वर को छोड़कर हम कहाँ जाएं, हम तो पापी थे, मगर आपने पिता अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राणों को दे, और जिसके लहू से हम लोग सब अपने पाप और दोष मुक्त हो जाएं और आपके पीछे चलने वाले हों। आपने हमें यह मौका दिया कि हम यीशु मसीह के वसीले से आपके बेटे और बेटियां कहलाने के हकदार हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं इतने महान प्यार का जो कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पूरे जगत के ऊपर उंडेल दिया पिता। और हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से आज की इस वर्शिप के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए, जबकि मौका दिया कि हम मीडिया के माध्यम से आज की इस वर्शिप के अंदर सहभागी हों और हम आपके नाम के लिए स्तुति और महिमा और वचन का यहाँ पर पाठ करें। और ये कितना मनभावना है, कितना अच्छा है कि हम आपके स्वर्गीय राज्य के अंदर और आपके इस पृथ्वी के जो राज्य है उसके अंदर भी हम लोग सम्मिलित होते हैं, सहभागी होते हैं और आपस में हम संगति को करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। इन सब बातों के कारण से, इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जगत की उत्पत्ति से यह मौका दिया कि हम जिंदा परमेश्वर को जानें, जिंदा परमेश्वर की महिमा को करें और उसके नाम को हम लेवें। और पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के पिता खास तौर से पिता इस वर्शिप के लिए ये आपको ग्रहण योग्य हो, गीतों का गाया जाना, वचन का सुनाया जाना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के लिए, हर एक कमिटीज़ के लिए, हम सबों को आपके हाथ में देते हैं पिता। सबों को सुरक्षित रखें और पिता अपने सामर्थ्य से उनको पिता संभाले रहें और हर प्रकार के दुख मुसीबत से, बीमारी हारी से, सबसे बचा के अपनी पनाह में रखे पिता। और जैसा कि हम जानते हैं ये पैंडेमिक का दौर है और पिता ये महामारी का जो ये एक भय का जो आलम है, डर का जो आलम बना हुआ है पिता,
हम आपसे निवेदन करते हैं कि पिता पूरे जगत के पाप को आप क्षमा एक बार फिर से अपने अनुग्रह के द्वारा करें। और पिता अगला साल जब ये आता है तो पिता आपकी करुणा, आपकी दया, चंगाई, महिमा को लेके आने वाला हो जाए पिता। और पिता सब लोग पिता आराम से इस माहौल के अंदर सांसों को लें और आपके नाम को महिमा दें और कहें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परम पिता ने इसको ठीक किया है। पिता चर्चेस जहाँ पर चलते हैं पिता उनके साथ भी आप रहें, उनको भी आप संभाल के रखें। लॉर्ड, we will pray for our conference and our leaders, especially we pray for our Bishop Sir and Sudipta Madam. Lord, be with them, and we are very thankful to you, Lord, that you have provided us the such wonderful and enthusiastic and energetic bishop to this church, to this episcopal. Lord, be with them, and Lord, keep them safe from every harm and from every danger. And Lord, also, Lord, we commit every leaders into your mighty hand. Lord, also keep them safe and bless them mightily. And Lord, also we pray for our pastor in charge, Reverend Dr. John R. Vishwas, and we commit his life and his family's life into your mighty hand. And we are very thankful to you, Lord, for the such wonderful and marvelous leadership that you provided us in the image of Reverend Dr. John R. Vishwas to this church. Be with them, Lord. And Lord, also we are thankful to you, Lord, for his life, that, Lord, you healed him and brought him back to church. And Lord, be with him all the time. And Lord, we pray for Pastor Mankumar Rai and his family. We commit into your mighty hand. Lord, be with him as well. And also, Lord, remove every problems, every hurdles from his life. So, Lord, he may glorify your name. And thank you for his leadership to Nepali congregation, Nepali church, Lord. And Lord, we commit every congregation into your mighty hand, Lord. Bless them abundantly. We pray for myself, Lord. Lord, thank you for giving me the privilege to serve you, Lord, and to serve the people of this church. Thank you, God, for the such wonderful blessings that you have given me, Lord. And Lord, also, I pray and I commit my family into your mighty hand too. And Lord, be with them and keep us safe from every harm and every danger. And Lord, be with us. And Lord, also we pray for today's sermon as your servant is going to share with us. He won't speak, but send your Holy Spirit, Lord. Your Holy Spirit will speak through him. And Lord, also give him the wisdom and knowledge. And Lord, open our hearts, mind and soul, so whatever we may hear, it will glorify your name. And Lord, also we pray for every committees of this church, our youth, our WSCS, women, and Lord, everything we commit. We also put, Lord, our church's need into your mighty hand, unto your feet, O Lord. And Lord, be with them and fulfill the needs, Lord, of our church. And thank you, God, for the such wonderful blessings that you have bestowed upon us through Jesus Christ. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी चर्चेज हैं जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर गुजर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एपिस्कोपल क्यों ना हो, पिता पेंडेमिक का दौर है, और पिता सारी ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जैसे अब्राहम कहता है कि युक्ति करने वाला परमेश्वर है, और वास्तव में आप युक्ति करने वाले ही परमेश्वर हैं। पिता, आप महान राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, और पिता सारी चीज़ें समय पर आप पूरी करवा दें पिता। और जैसा ये क्रिसमस जब हम बनाते हैं इस पेंडेमिक दौर के अंदर, सारे प्रोग्राम्स को हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी प्रेजेंस और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने वाली हो जाए पिता, और सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो आपकी लीडरशिप के अंदर, और पिता आपके पीछे हम चलने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं उनके साथ भी आप रहें, उनको भी आप चंगाई दें। और ख़ास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो मेरे दोस्त थे जिनकी सडन
पिता जो डेथ हुई है मिस्टर जेकब, पिता उनके साथ भी आप रहे। जवान लड़का था पिता, और हम जानते हैं कि ऐसे वक्त पर हम कैसे किसी को तसल्ली दे सकते हैं। मगर पिता हमारा निवेदन है कि उनके परिवार में जो जगह खाली हुई है उसको आप अपने पवित्र आत्मा से भरें। उनको पिता आप तसल्ली दें, और पिता वो आपको छोड़े ना और विश्वास जाहिर ना करें, मगर आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे पिता। उनके विश्वास को आप बढ़ाएं, उनकी सुध रखें पिता। और पिता जो पिता विजय विक्टर की जो वाइफ हैं उनको भी हम आपके हाथ में देते हैं पिता। उनके साथ भी आप रहें, और पिता सब कुछ आराम से हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, और हमारा विश्वास है कि आपका पिता जब हम मिलेंगे आपके राज्य में तो हम सब एक साथ मिलेंगे, और पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारा जीवन आपके हाथ में है, और पिता हमारा समय आपके हाथ में है, मगर आप महान परमेश्वर हैं, सदैव रहमत फरमाते हैं पिता। होने दीजिए कि मिस्टर विक्टर फैमिली के ऊपर भी आपका पिता हाथ बन जाए, और आपकी तसल्ली उनके जीवन के अंदर उतर जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने बर्थडे अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं इस वीक के अंदर, उनके साथ भी आप रहें, उनको भी आप बहुतायत से आशीषित करें। और लॉर्ड बी विद देम एंड ओपन द वेज लॉर्ड बिफोर देम, so they may walk and they may glorify your name. Open the doors of heaven, Lord, of blessings, Lord, upon them, and Lord, use them mightily. और पिता हम आपसे क्या मांगे, आप ही हमें देने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे पिता जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसा पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है पिता, अब हमारा आपसे निवेदन है कि पिता बहुत हुआ, और आपका अब जलाल आप दिखा दें पिता। बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं पिता, आप दिखा दें कि आप महान परमेश्वर हैं। और पिता जो मनुष्य है वो सिर्फ मनुष्य है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं। प्लीज़ गॉड आप ऐसा कर दें। और पिता हम आपसे क्या मांगे, सारे प्रार्थना को हम आपके आगे रखते हैं, सारी विनती निवेदनों को हम आपके आगे रखते हैं, और इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुमारक नाम में होकर मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory forever and ever. Amen. अजीज, अब ये वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की हम तो सिताइश करेंगे। We will glorify God by singing few songs. Praise and worship songs will be led by Brother Joshua and Mr. Henry Ellis and team. मेरा निवेदन है कि ब्रदर जोशुआ और मिस्टर हेनरी एलिस आज की इस प्रेजेंट वर्शिप को लीड करेंगे, और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा प्रेजेंट वर्शिप के माध्यम से साथ में मिलकर करें। Good morning. We'd like to present some carols for the Advent Sunday morning worship service. The first song that we're going to sing is Aaya Masih Duniya Mein Tum. Please join me. दुनिया
जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let sin and sorrows go, more thorns infest the ground. He comes to make his blessings known. Far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Away in a manger, no grave for a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky lay down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby the ways, but little Lord Jesus no crying he makes. I love you, Lord Jesus, lay down from the sky, and stay by my side until morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask you to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in your tender care, and fit us for heaven to live with you there. ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। स्वर्गलोक से आया फरिश्ता जग मरियम के लिए। स्वर्गलोक से आया फरिश्ता जग मरियम के लिए। मरियम से वो यूं बोला,
खुदा बाप की कुदरत को बेसाया डाला रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। अजीज, अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का. Now it's time to read the scripture which is taken from Luke chapter 1 verses beginning from 46 to 56. For today's scripture portion has been taken from the Gospel according to St. Luke chapter 1 verses beginning from 46 to 56. Hindi reading will be read by Mr. Saransh Kalingraj. English reading will be read by Mr. D. Andrew. And Nepali reading will be read by Miss Sakshi Sunar. हिंदी रीडिंग जो पढ़ी जाएगी वो पढ़ी जाएगी मिस्टर सारांश खालिंग के द्वारा. इंग्लिश रीडिंग पढ़ी जाएगी मिस्टर डी एंड्रयू के द्वारा. और नेपाली रीडिंग पढ़ी जाएगी मिस साक्षी सुनार के द्वारा. Let us hear the word of God and my request. The following persons please come and lead us in scripture reading. जय मसीह सबको. आज का वचन पहला लूकस 40 से लेकर 56 तक है. मरियम का भजन. इस पर मरियम ने यह कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा प्राण अपने मुक्तिदाता परमेश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है. अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं. पवित्र है उसका नाम. उसकी करुणा उसके भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है. प्रभु ने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है. उसने अखंड घमंडियों को तितर बितर कर दिया. उसने शक्तिशालियों को उनके सिंहासनों से उतार दिया और दीनों को महान बनाया. उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया. उसने अपनी करुणा को स्मरण कर अपने सेवक इर्शाल को संभाला, जैसी प्रतिज्ञा उसने हमारे पूर्वजों से की थी कि अब्राहम तथा उनकी संतान के प्रति उसकी करुणा सदा बनी रहेगी. लगभग 3 महीने एलिशिबा के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट. यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह. आउनुहोस् हामी बाइबल पाठ गर्नेछौँ. लुका 1:46 देखि 56 सम्म. यहाँ यसरी लेखेको छ, मरियमको स्तुतिगान. अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ र मेरो आत्मा मेरो मुक्तिदाता परमप्रभुमा रहमहाट गर्दछ, किनकि उहाँले आफ्नी दासीको दीनतामा कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ र अब प्रान्तले सबै पुस्तालाई मैले धन्यकिन भन्नेछुन्, किनभने उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ. उनको नाउँ पवित्र छ. उनको भनाइ मान्नेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म छ. उहाँले आफ्नो बाहुलीको सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ. उहाँले मानिसभित्र कल्पना घमण्ड गर्नेहरूलाई छरपष्ट पार्नुभएको छ. उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूको सिंहासनबाट हटाउनु भएको छ र दिनेहरूलाई उज्यालो बनाउनु भएको छ. भोकाइकोहरूलाई उहाँले असल चिजहरूले तृप्त पार्नु भएको छ र धनीहरूलाई उहाँले रित्ते हात पठाउनु भएको छ. उहाँले आफ्नो कृपा सम्पन्न गरेर उहाँको सेवक स्त्रीलाई सहायता दिनुभएको छ र हाम्रो पुर्खालाई भन्नुभए जे अब्राम र उहाँको भावी सन्तानलाई सदाकालको निम्ति दया देखाउनु भएको छ. मरियम तिनसँग प्राप्त 3 महिमन बसेर अनि आफ्नो घर फर्किन्. आमेन. The New Testament lesson is taken from Luke chapter 1 verses 46 to 56. And Mary said,
My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For that his mighty hath done to me great things, and holy is his name. And his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath shewed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from the seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. And Mary abode with her about 3 months, and returned to her own house. May the Lord add blessings to the reading, hearing, and understanding of his holy word. Amen. And now let us prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God. आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और सुनेंगे रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा. And may I request him, please come and share the word of God with all of us. हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई और बहनों, आज की सुंदर आराधना के समय के लिए. और मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में जबकि हम इस एडवेंट सीजन में हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और उसके दया में उन्नति कर रहे हैं. Dear friends, today we are grateful to the Lord for giving us this worship time. And as we participate in this worship today, and we remember this is the second Sunday of the Advent season. And we have been looking into yesterday and during this week Bible study some of the very important lessons about Advent season and the biblical prophecies that were made in the Garden of Eden to Adam and Eve. And then also we were looking into the promise that was made to Abraham, who was later called Ibrahim or Abraham. Exalted father was made the father of many nations. And this is possible, and this become possible for because by the grace of God that was revealed in and through Lord Jesus Christ. And dear friend, this is indeed a great time for all of us to study this thing. The message of Advent is message of his revelation, his coming from heaven to this world. And then subsequently he died on the cross of Calvary. He offered himself as atonement for me and for all of us on the cross of Calvary. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए. अब मेरी आशा है कि जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, प्रभु के वचन को हम ध्यान से देखते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है. प्रिय मित्रों, पिछले रविवार को मैंने आपके सामने मैग्निफिसेंट या धन्य मरियम की प्रार्थना या धन्यवाद के पदों से कुछ बातों पर हमने गौर करा था. हमने 6 बातें देखी थी. आज हम और कुछ बातें देखेंगे जिससे हम आशीष को पाएंगे. लेकिन इसके पहले कि हम आज के अध्ययन को करें, आइए हम प्रार्थना करें ताकि अपने हृदय को हम प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि उसके वचन को हम सुने, समझें और अपने जीवन को उसके लिए अर्पण कर सकें. आइए हम प्रार्थना करें. लेट्स प्रे. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए. Lord, we thank you for today's time that you have given to us. As we meditate upon your word, we pray, God, that speak to us so that we may understand, comprehend the deep meaning of your words and able to grow in you. Lord, we know, Lord, that you left heavenly throne. You are the King of kings, Lord of lords. You are the creator, sustainer, and the ultimate judge of the entire universe. And Lord, one day will come, as the Bible says, that each knees will bow down before you, Lord, and each tongue will confess that Jesus Christ is Lord. We thank you, Lord, and we anticipate with the hope
that our Lord will return one day to take his church to himself. Until then, Lord, we pray that prepare heart and minds so that our preparation of our hearts may be accepted in your sight. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका आना जल्द है प्रभु, और आप जल्द आने वाले हैं, और आप चाहते हैं प्रभु कि उसके लिए, उस बड़े मिलन के लिए जो प्रभु बादल में होगा, हम अपने आप को तैयार करने वाले बन सकें। आज के वचन पर आपकी आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we want to read few verses from Psalm 103, which is a psalm of David, which talks about magnifying God, glorifying God. And I want to read few verses from this psalm because this is very important psalm as far as the magnificence is concerned, where King David here in this psalm glorifies God's name. And I want to read few verses from Psalm 103, and a few verses I'll read that how and why he's praising God, why he want to say glory to his name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. All that is within me. Dear friends, we praise God not because we want to praise him, but because that is our duty, that is our obligation. Because the more we praise him, his name is exalted and is glorified, and we receive the blessing of that giving thanks to him. Because he is seeking even now also a worship where his people should worship him in spirit and truth. And so our worship even this evening, this morning also, is the act of our gratitude, act of our thanksgiving, act of our gratefulness. So King David says, O my soul, bless the Lord, and all that is within me, bless his holy name. राजा दाऊद कहते हैं, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. We praise his name because he is worthy. वो इसके योग्य है. उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया. उसका हमारे लिए समर्पण करना, उसका हमारे लिए देना परमेश्वर की कृपा है, उसकी दया है. और आज जबकि हम इस मैग्निफिसेंट को फिर से कुछ बातों को देखना चाहेंगे, मैं सोचता हूँ कि इससे हम आशीष को प्राप्त करेंगे. आगे वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना. अब यहाँ पर कुछ कारण दिए हैं जिसके लिए दाऊद ईश्वर का धन्यवाद करता है. अभी हमारे मैसेज का इंट्रोडक्शन है जिसको हम थोड़ा देखना चाहेंगे, और आगे हम उन बातों को देखेंगे जो पिछले हफ्ते रह गया था मरियम के धन्यवादियों में से. वो कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता. परमेश्वर जो क्षमा करने वाला है, इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं. और वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है. ही इज़ द हीलर. वो चंगाई देने वाला, यहोवा रफ़ा, हमें वो ज्यों का त्यों कर देता है. ही हील्स अस, मेकिंग अस होल. देयर इज नो ब्लॉकेज of any type anywhere in a physical body and spiritual body also. We are made whole so that we worship him in spirit and truth. फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है. प्राण का नष्ट हो जाना, उससे दूर हो जाना. परमेश्वर आपको और मुझ पर अनुग्रह करता है कि हम उसके संगति में बने रहे, उसकी महिमा करते रहें, और हमारे जीवन से उसकी महिमा हो सके. वो हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता. फिर आगे वो कहता है, दाऊद कहता है, और तेरे सिर पर करुणा अध्याय का मुकुट बांधता है. परमेश्वर हमें एक नई पहचान देता है. और फिर आगे वो कहते हैं, दाऊद कहते हैं, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हमारे आवश्यकताओं में पूर्ति करता है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से. और आत्मिक रूप से ज़्यादा इसलिए क्योंकि इंसान जो है वो आत्मिक प्राणी है और शारीरिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है. तो सबसे पहले हमारी आत्मा की बात हम करें.
परमेश्वर अपनी संगति से पूर्ण करता है। गॉड fulfills our life with His presence. We have that peace of God that passes all understanding in this world. We may look for peace in this world, and in certain extent we have that peace, but it's temporal. But when we are filled with His grace and mercy and His love, then that peace is beyond our expectation, comprehension and understanding. जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है कि हम निरंतर आत्मिक रूप से जवान रहते हैं, चाहे शारीरिक उम्र हमारी कितनी भी हो जाए, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, यहाँ तक कि 100 साल भी। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारी आत्मिक अवस्था एक जवान के समान होती है, ईगल के समान, जो हम उसमें बढ़ते रहते हैं और उसकी ऊंचाइयों को छूते रहते हैं और निरंतर उसमें आगे बढ़ते उसकी महिमा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, इन बातों को ध्यान में रखकर हम अब आगे चलेंगे और इस प्रार्थना को ध्यान देंगे। पिछले रविवार को हमने 5-6 बातों पर गौर करा। अब हम आगे देखेंगे। पहली बात यहाँ लिखा है, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर कर दिया। पहली बात परमेश्वर के लिए लिखा है, He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. परमेश्वर उन लोगों को तितर बितर करता है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। And I think this is a very important thing for us to understand. And there are many people in this world today who know that God is great. And their life is directly connected with God because He is our creator. But there are agnostics, there are atheists who do not want to recognize, appreciate God, and they want to bring all the credit to themselves. They want to say that we are reason for everything. I am reason for my own existence. Then what about beyond that? There's speechlessness, there's no answer. बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैं अपने इस संसार में होने के वजूद का कारण हूँ, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि आपके बाद क्या होगा जब इस संसार से आप चले जाएंगे, उसका जवाब उनके पास नहीं। वो कहते हैं पता नहीं, जो भी होगा होगा, नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य प्राणी एक रैशनल प्राणी है, वो सोच सकता, उसके पास एक विवेक है, और विवेक जो है वो अनंतकालीन है। डॉक्टर मार्टिन लूथर, जिनके द्वारा हमारे मसीह समाज में जागृति आई, या जिन्होंने प्रोटेस्ट करा उस धर्म विज्ञान का जिसमें कुछ ऐसी बातें सिखाई जा रही थी जो वचन के अनुसार नहीं है, उन्होंने एक बार कहा था कि परमेश्वर हमारे विवेक का न्याय, गॉड इज गोइंग टू जज आवर कॉन्सेंस। मतलब ये है कि ये जो विवेक हमारे पास है ये अनंतकालीन है। इट कैनॉट बी नलिफाइड, इट कैनॉट बी किल्ड, इट कैनॉट बी इग्नोर्ड। और जो कुछ हम करते हैं हमारे विवेक के अंदर इसका प्रभाव जाता। आप साधारण सी बात लीजिए, अगर आपके सामने कोई गलत निर्णय करने का वक्त आता है तो तुरंत आपके अंदर एक आवाज़ आएगी, वो कहेगी ये मत करना, ये गलत है, तुम्हारा इससे नुकसान होगा। अब किसी ने ये भी कहा विवेक का मतलब है ईश्वर की आवाज़ जो हमारे अंदर पाया जाता है, द वॉइस ऑफ गॉड दैट एग्जिस्ट इन ए ह्यूमन बीइंग, दैट इज आवर कॉन्सेंस। और इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम मानना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण मैं आज आपके सामने रखूँगा जिन्होंने घमंड करा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको सजा दी। बाइबल में बहुत से ऐसे नाम हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा और वो हवाला दूंगा, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। जैसे फिरौन जो मिस्र का राजा था, निर्गमन उसका 15 अध्याय 1 से 11, निर्गमन 15 अध्याय 1 से 11। फिर हम पढ़ते हैं कोरा और उनके दल के लोगों के बारे में, गिनती उसका 16 अध्याय, और किस प्रकार से उनको सजा मिली, गिनती 16 अध्याय। फिर हम पढ़ते हैं हमान के बारे में। हमान के बारे में एस्तर की पुस्तक में लिखा है
कि उसका घमंड उसके लिए विनाश का कारण हुआ। एस्तेर 6वां अध्याय 6 से 14। फिर लिखा है महाराज नबूकदनेस्सर, दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 24 से 37 पद। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 24 से 37 पद। उसके बाद आता है बेलशस्सर, दानियल की पुस्तक का 5वां अध्याय, जिसने जब दाखमधु पिया और उसके 1000 लोग थे जो उसका अधिपति थे जिनको उसने बुलाया, और लिखा है उसके सामने उन्होंने उन पात्रों को लाने का आदेश दिया जो यरूशलेम से लाए गए थे। वो सोने के थे, चांदी के थे और बाकी और धातुओं के थे। उसने उनमें शराब पिया, और जब वो ऐसा कर रहा था तो दीवार पे कुछ लिखा गया, मने मने तकेल उर्पसीन। मतलब था कि तू तौला गया और हल्का पाया गया। और वहाँ पर और लिखा है, अगर आप 5वें अध्याय को देखें, उसी रात बेलशस्सर मारा गया और उसकी जगह दारा या डोराइस राजा बना। ईश्वर का न्याय प्रकट हो गया उस घमंडी के सामने। फिर हम पढ़ते अमस्या के बारे में जो राजा था। दूसरा राजा 14 अध्याय 10 पद, दूसरा राजा 14:10। फिर उज्जिया के बारे में दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 पद, दूसरा इतिहास 26:16। और फिर उन सब लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जो घमंडी हैं, जो घमंड करते हैं। भजन संहिता 33:10, 33:10, पहला पत्रस 5:5, पहला पत्रस 5:5 और याकूब 4 अध्याय 6 पद। तो इन सारे हवालों में, इन सारे पदों में उन लोगों का वर्णन है जो घमंड करते हैं अपने जीवन के बारे में, और जीवन के तमाम उन कार्यों के बारे में उनको घमंड है कि भाई इन कामों को हम कर सकते हैं, अगर हम नहीं करते तो ये हमारे साथ नहीं होता, इसलिए इसका श्रेय हमें जाता। और बाइबल में इन नामों का वर्णन करा आपके सामने। अगर आप इनको पढ़ें तो आप इनका प्रतिफल दे सकते हैं। द नेम दैट आई रेड आउट नाउ, यू कैन टेक योर टाइम एंड स्टडी दिस लाइव्स and the references you can open, and you will see how God dealt with them because of their pride, because of their selfishness, and because of their self-esteem and glory. And that is why it is written here. What is here? कि उसने अपना भुजबल जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर कर दिया। He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. और आज भी लोग ऐसे हैं जो प्रभु के नाम से तो कहलाते हैं, लेकिन उनके हमारे मनों में घमंड पाया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा मैं एजुकेटेड हूँ, मेरी भाषा बहुत अच्छी है, पॉलिश्ड है, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये जानता हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो प्रभु के सेवक लोग हैं, बहुत सी बार वो कहते हैं कि ये पढ़े लिखे कम है, इनकी समझ कम है, इनकी भाषा ठीक नहीं है। लेकिन हम याद रखें कि परमेश्वर ऐसों पर न्याय करता है। और अगर आप देखें ईश्वर की बुलाहट के बारे में, मैं यहाँ पर उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय, जहाँ पर पौलुस प्रभु के सेवकों के बुलाहट की बात करता है। वो कहता है, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय, वो कहता है कि हे भाइयों अपने बुलाहट के बारे में सोचो, ना तो ज्ञानवान ना समझदार, पर परमेश्वर ने जगत के उनको चुना जो कुछ नहीं थे, ताकि उन्हें लज्जित करें जो कुछ हैं। और इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करनी, उसकी स्तुति करनी। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। परमेश्वर उन्हें गिरा देता है, उन्हें नेस्तनाबूद करता है जो शासन के दौरान या जो अपने अधिकार के समय उन पर शोषण लाते हैं, उनका शोषण करते हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। और पूरे संसार में ऐसा उदाहरण बार बार हम पाते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास सत्ता रही है और जिनके पास धन रहा है, उन्होंने हमेशा उनका शोषण करा है जो नम्र-दीन और गरीब लोग थे। चाहे हमारे देश की हम बात करें या संसार के बहुत से देशों की बात करें। और गुलाम प्रथा उन्हीं का एक उदाहरण है, किस प्रकार से मनुष्य प्राणी को खरीदता था, बेचता था और उनके साथ नारकीय व्यवहार करता था। परमेश्वर इन सब को देखता है, और एक दिन आएगा जब उसका न्याय वो करेगा, उन सबको वो सजा देगा जिन्होंने ऐसा करा है, जिन्होंने ऐसे काम करे हैं।
और उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। मित्रों, आज हम सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, होगा, और न्याय का प्रकट होना अवश्य है। परमेश्वर न्याय का करने वाला। और हम पढ़ते हैं इसके बारे में मत्ती सुसमाचार के 25 अध्याय के 31 पद से 46 पद तक आप देख लीजिएगा। मत्ती उसका 25 अध्याय और 31 से 46 पद तक वहाँ पर अंतिम न्याय का वर्णन है। और जो न्याय है वह है प्रभु यीशु मसीह, वो न्याय करेगा। लेकिन जब तक वो न्याय नहीं कर रहा है तब तक वो धीरज धरता है, ताकि हम जो अपने आप में दुराचारी हैं, अपने आप में घमंड रखते हैं, अपने बारे में बहुत बातें सोचते हैं जबकि हम है ही नहीं, तो हमें पश्चाताप का अवसर है। प्रभु कहता है कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता। तो यहाँ पर मरियम कहती है कि उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। और निश्चित रूप से उन दिनों में जब यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होने वाला था, तो इस्राएल जाति के अंदर बहुत सी महिलाएं पाई गई, बहुत से लोग पाए गए, और खासकर जो महिलाएं थी, कुमारियां थी, वो इस बात के लिए बाट जोती थी कि क्या पता वो मैं ही हूँ जिनको प्रभु अपने मसीहा के द्वारा, मसीहा के लिए इस्तेमाल करेगा, कि उसके द्वारा वो संसार में आए। और यहाँ पर नासरत नगर की वो स्त्री जो कुमारी थी मरियम, उसको प्रभु ने चुना। मरियम अपने बारे में कहती है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता है जो दीन और नम्र है। और निश्चित रूप से उसने अपने आप को प्रभु के स्वर्गदूत के सामने सौंपा। उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य हो। और जिब्राइल ने कहा कि तू गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र तुझसे उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और उसका नाम यीशु रखना। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बड़े कार्य के लिए जो नम्रदीन महिला मरियम के द्वारा संभव हुआ। तीसरी बात यहाँ लिखा है 53 पद में, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। परमेश्वर उन लोगों को तृप्त करता है जो भूखे और प्यासे हैं। और मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय में जो धन्यवादी वहाँ लिखा है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव के संभागी होने की भूख। परमेश्वर, मुझे आप अपनी संगति प्रदान करिए और मेरे जीवन के उस आत्मिक भूख को या प्यास को बुझाएं जो आपकी संगति के द्वारा हो सकती है। यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें अपनी संगति से परिपूर्ण करेगा, यही अर्थ है तृप्त किए जाने का। चाहे सांसारिक रूप से हमारे पास ज़्यादा धन ना हो मित्रों, चाहे सांसारिक रूप से हम कई बार कष्टों में रहते हैं, और ये है प्रभु के विश्वासियों की हर आवश्यकताएं हमेशा पूर्ति नहीं होती, लेकिन प्रभु हमें मोहताज भी नहीं करता, लेकिन वो हमें ऐसी स्थिति में रखता है कि हम निरंतर उस पर भरोसा कर सकें। He keeps us in that state of life where you could trust him always. Trusting him for small things, trusting him for big things. And when it is done in our life, we are blessed. We get blessing from him. So, Mary said here, Mary यहाँ कहती है, He has filled the hungry with good things and the rich he has sent away empty. जो इस बात को महसूस करते हैं मुझे उसके आशीष की आवश्यकता नहीं, वो खाली हाथ चले जाते हैं। और आज भी ऐसा है, जब प्रभु के वचन का प्रचार होता है बहुत से लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आत्मिक प्यास जो होती है उनको दबा देते हैं कि भैया ये छोटी छोटी बातें, क्रूस की कथा नाश होने वालों के क्या ही है, दुनिया भर जीवन भर में गुनाह करते रहो, पाप करते रहो, और कहो यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएंगे। क्या ये संभव है? ये संभव है। वचन कहता है ये संभव है। जब हम प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं तो वचन में लिखा अपने मनों को कठोर ना करो, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बातचीत कर रहा है, हमें आशीष दें। और जब वो हमें आशीषित करता है तो हम आशीषित हो जाते हैं। और यहाँ पर मरियम ये कहती है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया।
चौथी बात, उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाला लिया और अपनी उस दया को स्मरण करे। क्यों संभाला? ताकि इस्राएल जाति के लोग उसकी दया को स्मरण करें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो इस्राएल राष्ट्र है, हालांकि वो ज्योग्राफिकली एक छोटा राष्ट्र है, और अगर आप उसके प्रतिफल, उसके क्षेत्रफल को देखें तो आप पाएंगे कि वो केरल से, जो भारत का एक छोटा राज्य है, उससे बड़ा नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र, जिनके पास सैनिक क्षमता बहुत ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा गया, वो भी उनसे घबराते हैं। क्यों? कि परमेश्वर के लोग हैं ये। और परमेश्वर ये चाहता कि इस्राएल जाति के लोग, जिनको वो संभालता है, वो उसकी दया को हमेशा स्मरण करें। अगर आज मुझे और आपको, इस कलीसिया को, एफेसस मेथोडिस्ट चर्च को परमेश्वर संभालता है, तो वो चाहता कि हम सदा इस बात को अपने जीवन में स्मरण करें, उसकी दया को स्मरण करें। कभी घमंड ना करें, इस बात का घमंड ना करें कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, हम ये चलाएंगे, वो करेंगे, ये चलाएंगे। जी नहीं, हमें दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के वचन को पढ़ना है, उसे प्रार्थना करनी है। और जो सेवक है, जो हमारे चरवाहे हैं, जो जिनको प्रभु ने ठहराया है, हमें उनकी सुनने की आवश्यकता। चरवाहे कभी भी गलत अगुवाई आपको नहीं देंगे, वो उसी मार्ग में आपकी अगुवाई करेंगे जो जीवन का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है। और भजन 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। और ठीक यही कार्य मित्रों पासबान लोग करते हैं। अगर प्रभु का डर उनके मन में है, अगर प्रभु को जाना है, और सेवकाई में इसलिए आए कि प्रभु की सेवा करे, तो वो कलीसिया का मार्गदर्शन उस मार्ग में करते हैं जो प्रभु का मार्ग है। और इसलिए कलीसिया को उस मार्ग में बने रहने की आवश्यकता है, और प्रभु का धन्यवाद करना है, निरंतर उसकी स्तुति करनी है, और अपने जीवन में हमेशा ईश्वर की दया को स्मरण करने की आवश्यकता है। 5 बातें लिखा है जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। अब इस्राएल जाति जो है परमेश्वर की बड़ाई करती है, और इस्राएल जाति का जो मूल व्यक्ति है वो इब्राहिम है। इब्राहिम इस बात को हमेशा याद रखता था। प्रभु अपने वचन के द्वारा यहाँ पर हमें बता रहा है कि लिखा है 5वीं बात, जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। और परमेश्वर का जो दास अब्राहम था, यह अब्राम था, जो श्रेष्ठ पिता के रूप में था, और बाद में उसका नाम हुआ इब्राहिम, यानी वो जातियों का पिता हुआ। परमेश्वर ने उसको चुना, और इब्राहिम के वंशज जो हैं वो इस्राएल जाति के लोग हैं। मानो परमेश्वर उनके वंश को हमेशा याद दिलाता है कि परमेश्वर की भक्ति आत्म सच्चाई से करो, और हमेशा उसके दया को स्मरण करो। और यहाँ पर मरियम इस बात को लोगों के सामने कहती है। ये 5वीं बात है जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है, इन दिनों में इनको याद करना, इन दिनों में इन बातों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना। Dear friends, I know that these are the days where we are preparing ourselves during this Advent season. And I think God is speaking to us. Today we saw 5 important things here. From verse 51 to 55. And in the 56th verse we see here, and Mary remained with her about 3 months and returned to her home. Mary remained with Elizabeth for 3 months, and as her time to deliver the child came, she returned to her own village. And every day of her staying with Elizabeth was a time of testimony of how God has blessed her abundantly. And I perceive and I imagine how these 2 ladies will sit down, and Elizabeth will talk about the greatness of God in her life, and then Mary or Maryam will narrate about her life also. It was a witness between each other of God's goodness for 3 months, 90 days. God is great. Dear friends, whatever the time span you have,
मित्रों, जो भी जीवन में मेरे लिए समय है दैट इज़ इमेटेरियल, पर जब मेरे को मौका दिया गया है, क्या मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रही हूँ, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूँ? क्या मेरे जीवन से उसकी महिमा हो रही है? मैं सोचता हूँ कि ये जो एडवेंट सीजन है ये परमेश्वर की महिमा करने का समय है। उसने मेरे लिए मुझ पर दया करी, उसने मेरे पापों पर अनुग्रह करा, मुझ पर अनुग्रह करा, ताकि मैं अपने पापों से पश्चाताप करते उसके पास आऊँ और उसके भुजबल को देखूँ, उसके सामर्थ को देखूँ, ताकि मैं अपने जीवन में इस बात को जानूँ कि परमेश्वर दिनों को ऊंचा करता है, ताकि मैं इस बात को जानूँ कि परमेश्वर जो अधार्मिकता के भूखे और प्यासे उनको अच्छी वस्तु से तृप्त करता है, ताकि मैं निरंतर उसके कार्य की गवाही देता रहूं जैसे इस्राएल जाति के लोग देते हैं, ताकि मैं परमेश्वर के परिवार में होकर के जैसे इब्राहिम के वंश इस्राएल जाति के लोग उसके भलाइयों की गवाही देता रहा दुनिया के अंदर। परमेश्वर हमें सहायता करे, हमारी मदद करे, ताकि इन दिनों में जबकि हम इस बहुत ही इम्पोर्टेंट समय में हैं परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारे थीम को हम याद रखें कि हम प्रभु के उस वचन की आशा में हैं, उस प्रेम में हैं, उस भक्ति में हैं, उसके अनुग्रह में हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंपें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, लॉर्ड वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम that you have given to us so that we may study your word and able to grow in you day by day, Lord. We thank you for this time that you have given to us. Help us, Lord, that we may walk with you, exalt and magnify your name. Heavenly Father, we submit and surrender our entire being on your altar. Thank you, Lord, for speaking to us. Lord, we pray for this blessed congregation of Apostle Methodist Church. Our three congregations, Hindi, Nepali and English. Lord, help us to grow in you, enable to exalt and magnify and glorify your name. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन के बीच हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा सींचे प्रभु, ताकि वो फलवंतित हो, उसमें फल उत्पन्न हो, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने अपने दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा हमारे साथ दिया। और जब परमेश्वर आए तो उसके राज्य के अंदर हम 100 गुना इस वचन के माध्यम से फल लाने वाले हो सकें। अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे जो कि पाया जाता है इंग्लिश हिम बुक, उसका 382, एंजल फ्रॉम द रिल्म्स ऑफ ग्लोरी। एंड दिस इज आवर लास्ट सॉन्ग फॉर दिस वर्शिप सर्विस, which is found in English hymn number 382, Angel from the Realms of Glory. And we will collect our offering during this song. हम अपने हदियों को भी इस गीत के दौरान हम जमा करेंगे। Let us glorify God by singing this song. Angels from the realms of glory, bring your flight o'er all the earth. He who sang creation's story, now proclaim Messiah's birth. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Shepherds in the field abiding, watching o'er your flocks by night. God with man is now residing, yonder shines the infant light. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Angels lead your contemplations, brighter
अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम जो ऑफरिंग है, जो भेंट है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर मन कुमार राय से कि वो आएँ और भेंटों के लिए वो प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग भेंट के लिए दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर, आप परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर है। इसलिए हम खाली हाथ कैसे आएँ? जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर छोटे से हृदय भेंटी प्रभु पैसे के रूप में लेके आते हैं, और प्रभु इसको कबूल कर। और जिन्होंने अपना भेंट, दशवांश, पहला फल, धन्यवाद भेंटी, ये सब कुछ डाले हैं खुदा बाप ऑफरिंग बॉक्स में, उनको प्रभु बहुत से आशीष करे। 60 गुना और 70 गुना, 1000 गुना तू आशीष करे, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों का कोई भी भली वस्तु उनके जीवन में घटी ना हो। और प्रभु परमेश्वर उनमें जिस तरह वो छरते हैं, बिखरते हैं, उसी तरह प्रशस्त मात्रा में उनके घर परिवार में आशीषित हो, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हो। और जिन्होंने दिया है हृदय से धन्यवाद करते हैं, और जिन्होंने दे नहीं पाया खुदा बाप आने वाले दिन को प्रभु वो भी दे पाए, ताकि प्रभु वो सब भी आपके नाम की महिमा कर सकें। और इस भेंट से और ये दशवांश और पहलो फल, ये सारे चीज़ से प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य के काम के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु परमेश्वर पर यह होने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इन सारे विनती और प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हुए आपका प्रिय पुत्र, हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के उच्चार पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Now let us hear the church announcements by Reverend Dr. John R. Vishwas, followed by closing prayer and benediction. आइए हम चर्च के जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको सुनेंगे रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा, और क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम लोग सब रुखसत होंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता का आज के सुंदर आराधना के लिए। और हम इस सीज़न में भाग ले रहे हैं जो एडवेंट सीज़न है, और हमारे इन दिनों में जो वचन हम सुनते हैं और बाइबल स्टडी के दौरान भी, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के इस संसार में धन्य आगमन के बारे में है। और मेरा विश्वास है कि आज की आराधना से हमने आशीष पाई है। कुछ सूचनाएं हैं जिनको आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, हमने प्रार्थना के साथ और तमाम इन परिस्थितियों को देखते हुए हम तीनों पासबान ने ये निर्णय लिया है कि 20 तारीख से 20 दिसंबर 2020 से हम इस चर्च में आराधना के लिए आएंगे। हालांकि ये आराधना में हमारी जो उपस्थिति होगी रिस्ट्रिक्टेड होगी, केवल 100 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन हम कैसे लोगों को बुलाएं और कौन से लोग पहले आए और कौन से बाद में आए, ये एक समस्या थी। इसलिए हमने सोचा है कि हम कॉर्पोरेट वर्शिप करेंगे और कंबाइन वर्शिप करेंगे। यानी हमारी 3 कलीसियाएँ हैं, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, तीनों से लोग आएंगे और हम कोशिश करें कि हम 100 लोग ही आएँ। और इसलिए जो पहली आराधना होगी उसका समय है सुबह 8:30 बजे का, दूसरी आराधना होगी सुबह 10:30 बजे का, और तीसरी आराधना होगी दोपहर 12:30 बजे। और हम सोचते हैं कम से कम 300-325 लोग आराधना में भाग लेंगे इन दिनों में, इन तीनों आराधनाओं में। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम आगे इसके लिए सोचेंगे कि अगर हम आराधना के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ाई जाए, इस पर हम आगे विचार करेंगे। लेकिन 20 तारीख को हमारे 3 आराधना होगी। Dear friends, on 20th we'll have the corporate worship here in the church. We'll have 3 worship but combined worship. All our congregation, they're free to come, but we'll remember the restriction about the participation. There'll be only 100 people sitting. And we have made arrangement that in the pews, 3 people will sit, 2 in the 2 corner and 1 in the center. And the next pew will be kept empty so that we have the social distancing also. Then you can wash your hand by sanitizer as you enter the church. And these are the things that we need to remember.
So next Sunday, that is 13th, we will have the worship as it is we are having today by link or Zoom. But from following Sunday, that is 20th, we will come for the worship in the church. हर एक रविवार को हमारे एमवाइब की मीटिंग होती है जूम के द्वारा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. कोई यहाँ पर इन पर्सन मीटिंग नहीं होगी, लेकिन इस पूरे महीने दिसंबर महीने में जो मीटिंग आपकी होती है वो जूम के द्वारा होगी. समय है हर संडे को दोपहर को 2 बजे से. संडे स्कूल का प्रोग्राम भी हमारे जूम के द्वारा होगा और समय हर संडे को शाम को 4 बजे. इसको हम याद रखेंगे. साथ ही साथ तो हमारी वीकली बाइबल स्टडी है वो हम कर रहे हैं इन दिनों में. अब ये एक दिन बाद एक दिन हम कर रहे हैं. तो हमारी बाइबल स्टडी मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को होती है. समय है शाम को 7 बजे. और इन दिनों में हमारा जो विषय है वो है एडवेंट सीजन. डियर फ्रेंड्स, वी आर हैविंग आवर वीकली बाइबल स्टडी ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, and the time is at 7 o'clock p.m. And I encourage all of you to please participate. It is coming through a link and it is provided to you so that you can participate and learn, and let us have the fellowship as we have this Bible study this month about the Advent season. Dear friends, we have prepared a Christmas program, and I've always already floated it, posted it in our WhatsApp, that is Apostle Methodist Church and Pastor Committee also. So you can see to that and follow that, so that any program that we are having is there. Due to the pandemic situation, friend, this year we are not going to make any cake. There will be no dinner, no lunch, not even tea also, because we want to have social distance. So kindly bring your own water when you come to church, so that you can drink your water and avoid hand shake or hand touch, any type of touch. You can say greetings from distance, keep a distance of 3 feet, so that we are safe, and as we come you can go back. So these are the some announcement. हमारे चर्च का ऑफिस हर रोज़ खुलता है वर्किंग डेज में. समय है सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक. अगर आप चर्च के फंड को देना चाहते हैं, टाइट देना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आइए और अपने चर्च फंड आप जमा करें. हमारी आशा है कि आप ये सब करेंगे और प्रभु आप सबों को आशीष देगा. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे असिस्टेंट पास्टर्स का, पास्टर शरण सावंत का, पास्टर मान कुमार का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज की आराधना में मदद करी. हमारे भाई प्रकाश तिग्गा का और हमारे क्वायर का, जो इन दिनों में हमारी मदद कर रहे हैं. प्रभु ने आशीष दें. एक और ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार हम घर नहीं जाएंगे कैरल सिंगिंग के लिए, लेकिन हमने 4 शाम ठहराई, 17, 18, 19, 20 शाम को 7:30 से शाम को 9 बजे तक. और हम हमारे लिए लिंक के द्वारा या जूम के द्वारा यह कैरल सिंगिंग हमारे घर में पहुँचेगा. आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं. और मैं निवेदन करूंगा मिस्टर रविंद्र लॉरेंस से, मिसिस हंडा लॉरेंस से और हमारी म्यूज़िक टीम के मिस्टर जोशुआ सैमुअल को और उनके टीम मेंबर को और हमारी क्वायर को कि मेहरबानी से आप गाना प्रैक्टिस करें. हमारे इस कैरल सिंगिंग के लिए कुछ हिंदी के गाने, कुछ हिंदी के भजन, कुछ इंग्लिश के गाने और कुछ नेपाली गीत, ताकि हम उसको बजा सकें. और ये आप प्रैक्टिस करके इसके रिकॉर्ड कराएं और मेहरबानी से 17 तारीख तक आप मिस्टर प्रकाश साहब को दे दें, ताकि उसको कंपाइल किया जा सके और इसको हम पोस्ट कर सकें हमारे कैरल सिंगिंग के लिए, जो 17, 18, 19, 20 को होगा, तक हम सब उसमें भाग ले सकें. समय होगा शाम के 7:30 से शाम को 9 बजे तक. हमारी आशा है कि आप इन सबको ध्यान देंगे और कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे. मित्रों, हम खास प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो इन दिनों में बीमार हैं पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से. कुछ लोग जो हमारे दिल्ली अलग अलग चर्चेस के, मेथोडिस्ट चर्च के, दूसरे चर्चेस के दुनिया से चले गए. हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको शांति दे. और आज ही हमें पता लगा कि हमारे अजमेर मदार में एक जवान बच्चा जो करीब 31 साल का था, हार्ट अटैक से वो चला गया.
हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर विक्टर जेकब, उनका बेटा है ये, प्रभु उन्हें शांति दें। और भी लोग जो दुनिया में थे, कई चले गए दुनिया से, हम उन पर प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें शांति दे, अपना हाथ उन पर रखें। मिस्टर अवधेश डेविड जो हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अजमेर के बहुत ही कर्मठ और रेगुलर मेंबर थे, पिछले दिनों वो प्रभु में सो गए। उनको भी हार्ट अटैक हुआ कोरोना वायरस की वजह से, और वो करीब 55-60 साल के थे। प्रभु उन पर अनुग्रह, उनके परिवार में अनुग्रह करें और उन्हें शांति प्रदान करें। मित्रों, इन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, हम खास प्रार्थना इस समय करना चाहते हैं। इसके बाद बेनेडिक्शन के बाद इस आराधना से हम रुखसत होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। और सबसे पहले हम प्रार्थना करें हमारे इन परिवारों के लिए जिनके प्रियजन दुनिया से चले गए। प्रभु उनको शांति दें और अपना अनुग्रह प्रदान करें। लेट्स प्रे। We thank you, Lord, for this precious time that you've given to us. Once again, Lord, we, in solidarity with these friends, our church members, Lord, not only in Delhi district but in Delhi Regional Conference, especially in Ajmer and CMC, Lord, we have lost certain people, not only in Methodist but CNI also. Lord, we pray for these friends, families, members, Lord, whose name I just mentioned. Lord, give them your peace so that they may really acknowledge that Jesus is our Lord. He is the hope of glory for all of us. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन लोगों के लिए, प्रभु, जिनके प्रियजन इन दिनों में दुनिया से चले गए, खास करके कोरोना वायरस पॉजिटिव के बारे में प्रभु के लिए आप उन्हें शांति दें। और हमारे दिल्ली के अंदर प्रभु, हमारी कलीसियाओं के अंदर कुछ लोग दुनिया से रहलत कर गए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को आप शांति दें प्रभु, और इस बात का एहसास दे कि आप उनके साथ साथ हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं, और आपने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, इसे नहीं देता जो जगत तुम्हें देता है, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। आज की आराधना के लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए प्रभु जो हमें दिया गया। हम चाहते प्रभु कि हम अपने जीवनों को तैयार करें, और इस साल प्रभु बहुत ही गंभीरता के साथ शांत रहते हुए प्रभु हम बड़ा दिन मना सकें, इस बात को याद करते हुए कि 2000 साल पहले आप इस दुनिया में आ गए, और आपके आने से दुनिया के पास एक जीवित आशा है कि हमारे पापों के लिए जो मारा गया यीशु मसीह, वो जिलाया भी गया, आज वो जीवित है। इसलिए जब हमारा विश्वास उस पर केंद्रित हो जाता है तो हम जीवन प्राप्त करते हैं, और बहुत आयत का जीवन प्राप्त करते हैं। और यही शुभ संदेश है जो हमें दूसरों तक पहुंचाना है, और अपने आप को उसके कारण आनंदित और खुश रखना है। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें आज की आराधना के लिए, इस धन्य कलीसिया के लिए प्रभु जी, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस पर, हमारे बिशप साहब, उनके परिवार पर, हमारे देश के अगुओं पर आपकी आशीष हो। कलीसिया के लीडर्स को संभालें, हर एक मेंबर्स को संभालें। आपके प्रतिज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। लेट अस रिसीव द बेनेडिक्शन। आइए हम आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदुस की फाकत और शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन।